ठीक है सर। Is the screen visible to you? Yes, sir. Okay, so we start our today's lecture. In fact, this was the lecture which we wanted to do Yes, sir. Visible. as a problem solving session in the last week, which we get make a class for this, but unfortunately we could not have that class because of the low attendance. So I'll start from here again, and we are going to talk about the spatial description and transformation, which we have started in the last week, and this problem solving session will in fact augment your concept and will have a reinforcement for you. We go with this lecture. So in the last lecture, in the last class, in fact, I requested all of you to please go through these two compound transformation. One was about fixed angles, and the second one is about Euler angles. So we are going to talk about the fixed angles first. So I'm just going to, has anybody gone through these articles in the book? आप में से किसी ने ये पढ़ा? Okay, so if not, no problem. We will just go through this again, and that will clear your concept of rotation. So we have been in fact talking about rotations throughout. We started with the robotics. So this is about rotation and translation, and then we combined the rotation and translation, and we came up with a terminology which is called transformation, which is in fact a combination of rotation and translation. And this rotation is about axis, about some axis which we call frame. So we attach frame to each joint of the robot, and then we rotate any of the joint. That means that we are rotating one frame with respect to another. And then is the translation in which in fact we have a known point. Let's see, we have this x and y, and we have a known point P in any of the frame. Let's see if this was a frame B. So we have a point P which is known to us in frame B, and this is the vector in fact which is called actually P in B. So this vector is called P in B. So if we know P in B, and we have another frame with us which is a reference frame like here, which is, let's see, this for the frame B, XB and YB. Sorry, this is YB. So if we have a frame XA and YA, so we can find out the position of this particular point P with respect to frame A. So this is what we have been doing, in which we came across certain kind of rotations between two frames. So one frame is rotating with respect to another. So we talked about this also, and then we talked about the translation also, that one frame is not only rotating, but it is moving also with respect to the other frame. So now we are going a little advanced in transformation, and this is called compound transformation because it involves more than one rotation about axes. So let us first read this statement. Said, what is fixed axis rotation? So let us read this.
start with the frame coincident with a known frame of reference A. So it means that there are two frames which are called frame A and frame B. So let us see this first, and we talk about this. Let me just encircle it with red. So this is actually our frame A, and then we have a frame B. So let me just take another color to depict frame B. This is XB, YB, and ZB. So we have a frame B which is depicted in green. So before any movement or before any rotation and translation, frame A and frame B, they were coincident. It means they were overlapping. So now we are going to study the movement of frame B with respect to frame A, either with the fixed angles rotation or the other is idle angle that will come subsequently in our lecture. So we are going to first restrict ourselves to fixed angle. So how do we calculate the rotation or the transformation from one frame to another? So in this example, which is given below, the diagram which is given below, so this tells us, number one, rotate B first about XA by an angle gamma. So here you see that this is XA, ये आपके सामने red में circle हुआ है. So this is XA, and we are rotating frame B with respect to XA by an angle gamma. So क्या हो रहा है कि XB और XA ये दोनों अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद हैं. They have not moved, but आप देखिए कि XB YB से दूर move कर गया है. इसी तरह ZB has moved away from ZA in terms of this angle theta, this angle gamma. So this is the first rotation in which we have rotated frame B with respect to x-axis of frame A. I repeat, we have rotated frame B with respect to x-axis of frame A by an angle gamma. So this is the first rotation. So let me just put here. So this is first rotation. Now what happens in second diagram? So let me just, okay. Now what happens? Now in this, then about YA by an angle beta. So ये XB जिस पोजीशन में पहुंच गया था, वहां से we have rotated frame B with respect to y-axis of frame A, ये जो आपको नजर आ रहा है, y-axis of frame A by an angle beta. So हम I repeat, तो हम फ्रेम B को रोटेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम A. ये तो पहली बात है, फिक्स एंगल की मैं बात कर रहा हूं. पहली रोटेशन में हमने क्या किया कि फ्रेम B को फ्रेम A के एक्स एक्सिस के अबाउट मूव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ऑफ फ्रेम A by an angle gamma. In the second rotation, we rotated frame B with respect to YB by an angle beta. So this is second rotation. And finally, in the third rotation, what did we do? We rotated frame B with respect to ZA, by an angle alpha, which is shown here. So this is your third rotation.
और ये आपको जो 3 डायग्राम नजर आ रही हैं, ये इनफैक्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रोटेशन की है। सो आफ्टर थर्ड रोटेशन आपको जो पोजीशन नजर आएगी, रोटेशन नजर आएगी, वो मैं आपको जरा, ये मेरे पास एक्स ए, वाई ए और जेड ए था। सो आफ्टर 3 रोटेशन जो मेरे पास बी की ओरिएंटेशन आ रही है वो दिस इज एक्स बी, वाई बी एंड जेड बी। और इसके ऊपर ये 3 डैश के डले में ये एक्चुअली हमें ये बता रहे हैं कि दिस इज इट हैज गॉन थ्रू 3 रोटेशन। सो नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट the orientation of my frame B with respect to my frame A. So this is a compound transformation, and we would calculate these rotation matrix. We will calculate this rotation matrix in the next slide. So let me just ask you that until here, are you clear about this rotation? Yes, sir, rotations तो clear है. रोटेशन क्लियर है। अच्छा, ये भी समझ आ गई है कि ये जो रोटेशंस हैं ये बी फ्रेम रोटेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ए, ये भी आपको समझ आ गई है? Yes, sir. ओके, थोड़ा सा मैं इसको रीइंफोर्स करता हूं आपके साथ। लेट मी सॉरी, थोड़ा सा मैं इसको रीइंफोर्स करता हूं एंड लेट मी शो यू समथिंग। अगर आप अब इस मैं जरा कैमरा की व्यू को चेंज कर रहा हूँ जी। अब आपको ये टेबल के ऊपर 2 फ्रेम्स पड़े हुए नजर आ रहे हैं, फ्रेम ए और फ्रेम बी। Yes, sir. ओके, सो लेट मी जस्ट हम सबसे पहले वही बात करते हैं कि लेट से ये दोनों फ्रेम्स जो हैं ये कोइंसिडेंट हैं। मैंने इनको साइड बाय साइड इसलिए रखा है कि मैं इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकता। तो आप देखें कि हमारा जो पहला, सो दिस वाज एक्स, ये आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो ब्लैक है, ये वाला जो फ्रेम है ये हमारा एक्स फ्रेम था, और मैं इसको उसी ओरिएंटेशन में लेके आता हूं जिसमें आपको ये नजर आ रहा है। सो ये एक्स वाला मैंने आपके सामने ये रखा हुआ है, और मैंने इसको उसी ओरिएंटेशन में रखा है कि जिसमें एक्स जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और ये मैं इसके साथ ये फ्रेम भी रख रहा हूं उसी तरह से कोइंसाइड करके। सो जब मैं पहली रोटेशन करूंगा विच इज एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन है बी की, एक्स ए के अबाउट, तो ये देखेंगे ऐसे रोटेट करके यूं मुझे नजर आएगा। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है। सेकंड रोटेशन किसके अबाउट है? वाई ए। सो अब मैंने इसको रोटेट किसके अबाउट करना है? ये वाई ए मेरा नीचे पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको ऐसे वाई ए के अबाउट रोटेट करना है। सो ये वाई ए के अबाउट रोटेट हो गया। और थर्ड मैंने रोटेशन किसके बाद, सॉरी वाई ए कह रहा हूं, एक्स ए के बराबर, वाई ए के बराबर से मेरी ये रोटेशन हो गई थी सेकंड, और थर्ड मेरी किसके होनी थी? जी ए। सो दिस इज जी ए। तो जी ए के अगेंस्ट मैं इसको इस तरह से रोटेट करूंगा, और ये जो अब मुझे आप रोटेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, दिस इज इन फैक्ट अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ, दिस इज अबाउट फ्रेम ए, फ्रेम ए के एक्सिस के अबाउट है, और फ्रेम बी की रोटेशन। सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड एंगल। तो इसका मतलब है कि जो मेरे ए के एंगल्स थे, जो मेरे ए के एक्सिस थे जिनके अबाउट मैं रोटेट कर रहा हूं, दे वर फिक्स्ड, they did not move from their place, वो अपनी जगह पे खड़े हैं, और बी एक्सिस को मैंने उसके मुताबिक रोटेट किया। ठीक है जी। तो ये कुछ थोड़ी सी और बेहतर आपको इसकी समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो हम फिर अगली स्लाइड पे मूव करते हैं, क्योंकि मैं आपको इनफैक्ट ये रोटेशंस की जब आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी तो फिर हमारे लिए आगे चलना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। So if there is no question until here, so let me just move forward to the next slide and let's see what do we have on the next slide. Just look at this. Look at this equation. ऊपर कोई वाली जो स्टेटमेंट है वो वही लिखी हुई है। Look at this equation.
we know that R is called as rotation, and this is B with respect to A, ये भी हमें पता है. Then rotation is about X, Y and Z, ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया. So हमने इस पूरी टर्म को डिफाइन कर लिया कि this is a rotation matrix which gives us a rotation of B with respect to A through X, Y and Z by corresponding angles. X के corresponding angle alpha है, Y का corresponding angle beta है और Z का corresponding angle alpha है. अब ये देखिए इस साइड को देखिए, जो रोटेशन हमने सबसे पहले की थी उसको हमने एंड में लिखा. सो दिस इज एक्चुअली रोटेशन 1, this is rotation 2 and this is rotation 3. अब जो चीज आपको बताने लगा हूं वो ये है कि when we rotate our axis with reference to fixed angles, we rotate our frame with respect to fixed angles. So हम मैथमेटिकली अपनी मैट्रिसेस को, रोटेशन मैट्रिसेस को अरेंज इस तरीके से करते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया. That we write down the first rotation on the right hand side, extreme right के ऊपर, which you can see here as rotation number 1, then the second rotation and then the third rotation, and then we can multiply all of them like this. So आप ये now let us see that we have now ये x y z के जो हमारे rotation matrices थे, we have already calculated these, we have already gone through these. So this is rotation about z, which is in which you can see z as 1. So this is rotation about z by an angle alpha. This is rotation about y by an angle beta, and this is rotation about x by an angle gamma. So now I can calculate this and I can find out this rotation matrix by multiplying all these three. So I would request you to please multiply these matrices with your hand at your own and come to this solution. So this is going to give you a practice of multiplying matrices, which you might have not practiced for a very long time. So I would request you to please practice this and find out this matrix by multiplying all the three rotation matrices. So this is the rotation matrix which gives us three rotations here. So this gives us three rotations, 3 into rotations. All right. So whenever we are going to put in the values of the angles, here you see that we have denoted cos alpha as C alpha. So इसमें आप देखिएगा कि मैंने cos alpha को C alpha, यानी cos के लिए मैंने सिर्फ C यूज किया so that this matrix doesn't go beyond our slide. So just to make it concise, we have इसी तरह we have reduced sin as S. So this is a little change in the convention which we have been using. So the cos is now denoted by C and sin is now denoted by S. So this is the rotation matrix which we have in terms of angles, and if we know the values of the angles, so that we can get this matrix which has numbers. So R11 is going to be a certain number, and similarly all the R's, R11, R12, R13, they are going to have a certain number. So now what happens if we know the angles? So then it means that we can find out this rotation matrix in terms of numbers, and vice versa, that if we have this matrix in number, so we can then find out these angles, that how much have we rotated about, how much have we rotated the frame B about x, y and z axis of frame A. So हमें उससे ये दोनों चीजें मिल सकती हैं,
that either we know the angle so that we can find out the rotation matrix in terms of numbers, and if we know the rotation matrix in terms of number, we can calculate our angles through which we have rotated. So this is the calculation of angles if we are given the matrix. So this is how we can calculate these numbers. और आप ये देखिए कि let's see, सबसे पहले आप देखें, if you use this, if you equate this R31 minus sin beta, if you equate this R31 is equal to minus sin, is equal to minus sin beta. Let me just so sin beta. So here I can find out beta. ठीक है, सो मुझे यहाँ से बीटा मिल जाएगा और मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास साइन बीटा है और ये देखिए R11 ये मुझे यहाँ से cos दे देगा. This is going to give me cosine. So ये आपने इक्वेट करना है R11 R21 इनको इक्वेट करना है किस किस के बराबर. Let me just take another color so that R11 और R21 इन दोनों को इक्वेट किसके बराबर करना है, ये cos अल्फा cos बीटा, ये आपको R11 देगा, R11 देगा, then R21 ये आपको R21, ठीक है. सो आपने इन दो को, एक ये और एक ये, इन दोनों को आपने इक्वेट करना है with this formula and you are going to find out cos of beta from here. So इससे आपको बीटा एंगल मिल जाएगा, इनका tan लेंगे. इसी तरह अल्फा के लिए आपने ये टर्म्स यूज करनी है and then for gamma you use these terms. So what I would request you to please go through these conversions or go through these go through this exercise so that you can find out with these formula to calculate the angles if you are given the rotation matrix, which is consists of R11, R12, R13, and so on. So if you are given this matrix in the form of some numbers, so you should be able to find out the angles through which that rotation has taken place. So this is fixed angle. जी. So एक कॉमी का मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जी किसी एक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है. सो ये आपने इनफैक्ट आपने यहाँ से ये देखना है कि यार कहाँ से मैं कॉस या साइन की वैल्यू निकाल सकता हूँ किसी भी एंगल, तो उससे आपने रूट करना है इनको. जैसे मैंने आपको कॉस का बता दिया है, इसी तरह अल्फा के लिए देखिए R21 by cos beta, R21 by cos beta. So where is R21? This is R21. Let me just take this color. So this is R21. So here R21 by cos of beta is going to give you what? Sin alpha cos beta by cos beta. So this is going to give you sin of alpha. इसी तरह यहां से इससे आपको sin of alpha मिल गया, इससे आपको sin of beta मिल जाएगा, और जब मैं sin alpha sin beta का जो ये a tangent 2 करता हूं तो एक्चुअली मुझे इनवर्स टेंजेंट है. दिस इज इनवर्स टेंजेंट क्योंकि वी नो दैट tan of alpha will be equal to sin of alpha divided by cos of alpha, and alpha would be equal to tan inverse of sin of alpha divided by cos of alpha. So यहाँ से मुझे sorry sin sin of alpha, ये sin beta नहीं है, ये this is sin of cos alpha.
This is sin alpha. Cos of alpha. Sorry. मैंने से गलती हुई. Let me just erase it once and then find out this. So sin alpha और यहाँ से मुझे cos of alpha मिलेगा. ठीक है? So sin alpha cos alpha से I would be able to find out the tangent. इसी तरह जो gamma है उसके लिए भी मैं R32 और R332 यूज कर सकता हूँ. So this is how we can calculate all the angles while we are dealing with the fixed angle rotation. अब यहाँ तक मुझे बताइए कोई confusion. This is fixed angle. मैं repeat कर रहा हूँ, this is fixed angle. सर अगर साइन अल्फा का इन्वर्स ले साइन इनवर्स, जी मतलब जैसे हमने साइन अल्फा और कॉस अल्फा निकाला, अगर हम साइन अल्फा निकाल के उसका इन्वर्स ले लेते हैं साइन का, तो फिर भी हमें अल्फा नहीं आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा. लेकिन हम करते क्या है, देखें, जब आपको याद होगा कि मैंने एक बात की थी कि जब हम इनवर्स काइनेमैटिक्स की बात करते हैं, तो इनवर्स काइनेमैटिक्स में भी है मोर देन वन सॉल्यूशन. इनवर्स काइनेमैटिक्स में वी हैव मोर देन वन सॉल्यूशन. सो ये जो मैं arc tan 2 की बात कर रहा हूं, यानी कि a tan 2 की बात कर रहा हूं, so this is going to give me angles in plus minus. ठीक है, let's see, plus minus 90. So it is either going to be plus 90 and plus 273 or 270. ऐसे minus 90 means plus 273 or 270. यस सर. Okay, so ये जो टर्म मैं आपको इस वक्त ये दिखा रहा हूँ, so ये this is going to give you two angles actually. So it means that you are going to calculate or you are going to know that for the inverse kinematics, जिसके अंदर के we know the position, हमें याद होगा कि मैंने कहा था for an inverse kinematics problem we know the position जिसमें कि एक rotation matrix हमें पता होता है, and with the help of that we want to calculate our angles. So जो angles हैं वो more than one configuration में you can reach that orientation. तो इसलिए मैंने ये हम आपको जब हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो हम टू सॉल्यूशंस की बात करते हैं. So इसलिए मैंने आपको ये चीज इस तरह से लिख के दी है कि this is going to give you two solutions in fact to reach that rotation matrix. ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? यस सर, क्लियर हो गया. Okay, जबरदस्त. So let us move forward and talk about this. Now these fixed angle जो हैं ये actually they have 12 combinations. So these combinations are actually given in your book at the end जो कि appendix है, but I'll just try to write them down here for you. So in fact these have 12 combinations. So combination 1 is XYZ, XYZ. Second combination is XZY. Third combination is YXZ. And if you go on, so your 12th combination is going to be ZYZ. ZYZ. ठीक है, तो ये 12 combinations हैं fixed angle transformation के जिनको यूज करके we can find out our next orientation or the rotation about the fixed axis. इसी तरह जब हम आइलर एंगल की बात करेंगे तो आइलर एंगल में फिर हमें इसी तरह की 12 रोटेशंस या 12 कन्वेंशंस जो हमें मिलेंगी. सो इन 12 कॉम्बिनेशंस को यूज करके आप एक सर्टेन स्पेस के अंदर किसी भी ओरिएंटेशन को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये वाली बात समझ आती है? यस सर. ओके, सो सर ये 12 एंगल सर कन्वेंशंस कैसे होती हैं? Sorry? XYZ कि सर अगर हम XYZ को सर अगर हम आगे पीछे करें तो सर इसमें 12 एंगल्स
कि ना 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 ना, XYZ के 12 एंगल्स नहीं है, XYZ is one combination जिसमें you rotate about X, then you rotate about Y, then you rotate about Z. अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग, चलिए मैं आपको यहाँ से एक चीज और बताता हूँ, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। ये जो मैंने आपको ZYZ लिख के दिया है, this is actually rotation about X. ये जरा अब आपने करना है। मैंने, अच्छा मुझे ये बताइए कि अब तक किस किस स्टूडेंट ने आप में से ये एक्सिस जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं, आपको मैंने दिखाए थे, किस किस ने ये बना ली? किसी ने ये बनाया घर के ऊपर? सर क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे हैं सर, जिसमें जो रोटेशन? मैंने आपको अभी वो मार्कर से बने हुए नहीं, मैं आपको दिखा रहा था। यस सर। यस तो इस तरह के आप लोगों ने बनाए हैं अपने पास घर पे कि नहीं? यस सर, वो तो प्रॉब्लम आपको सॉल्विंग देखते हैं की सर। थी, उसमें बनाए थे सर। बहुत अच्छा। तो अब आप उन ये दोनों फ्रेम्स को रखेंगे और ये बड़ा कॉम्बिनेशन आप इनको रोटेट करें एंड देन सी कि यार आपको क्या मिलता है, एंड यू विल फाइंड आउट कि अगर मैं Z by Z के ऊपर एक रोटेशन कराता हूँ तो दिस विल एक्चुअली बी अ रोटेशन अबाउट X। अच्छा, वाई मैं रोटेशन अबाउट X नहीं कर रहा, Z by Z कर रहा हूँ? इसलिए कि X के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट हो, X के ऊपर कंस्ट्रेंट हो, तो मैं X के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता हूं। तो मैं X के अबाउट रोटेशन अचीव कर रहा हूं बाय रोटेटिंग अबाउट Z फर्स्ट, देन Y एंड देन अबाउट Z। तो ठीक सर है, ये इसलिए एक तरीका है सर कि आप एक्स को रोटेट करें विदाउट हैव एक्चुअली रोटेटिंग एक्स, विदाउट एक्चुअली रोटेटिंग एक्स एक्सिस को रोटेट किए बगैर इफेक्टिवली सिर्फ एक्स एक्सिस पे रोटेशन हो रही है ये करके। In fact, this is a rotation about x-axis, ये जो आपको Z by Z 12 नंबर लिखा है, but होना क्या चाहिए कि यार मैं तो एक ही रोटेशन x के अराउंड अबाउट कर लूं, तो मुझे क्यों तीन रोटेशन की जरूरत है? So it means that in this report I had a constraint that मैं उस particular joint को x के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, कोई constraint। लेकिन मुझे अपनी ओरिएंटेशन उस एक्स के अराउंड अबाउट रोटेट करके बनती है, नहीं तो मैं एक्चुअली Z पे, फिर Y पे और फिर Z पे रोटेट करता हूं, तो मुझे रोटेशन अबाउट एक्स मिलता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये अगर आप लोगों की जो बुक्स, आई डो नॉट नो आपने हार्ड कॉपीज तो शायद नहीं मिली होंगी, बट अगर आप इसमें इवन जो हमारी जो मैंने आपको दी हुई है, क्या कह रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी दी हुई है, उसकी जो लास्ट 6 रोटेशन है, यानी कि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज अनटिल 12, तो जो लास्ट 6 रोटेशंस हैं वो आपको नजर आएंगी। वो रोटेशंस जो हैं वो दे आर अबाउट अ सिंगल एक्सिस अचीव्ड बाय 3 रोटेशंस। तो ये आपने खुद जरा इस चीज को फाइंड आउट करना है। जस्ट लुक एट दोस rotation matrices which are given at the end of the book. This is appendix B of your book. तो उसमें देखेंगे तो आप then you should be able to find out the rotations में ये किस तरह से नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, सो अगर यहाँ तक क्लियर है, so shall we move forward? जी, किसी का माइक ऑन है? ओके, यस सर, क्लियर है। क्लियर है, चलिए ठीक है। नाउ we talk about island angles. Now Excuse me, we sir? talk, जी तो जो आपने लास्ट बात की है हाँ जी, वो सर एक बार रिपीट कर दें, वो जरा मतलब मिस हो गई। ओके ओके, लेट मी जस्ट गो बैक। लास्ट बार मैंने जो है वो ये की थी कि ये जो 12 एंगल सेट कन्वेंशंस हैं व्हिच आर गिवन इन अपेंडिक्स बी ऑफ योर बुक, हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों में आप इसको देख सकते हैं। सो जो लास्ट 6 रोटेशंस हैं इसकी, ये ऑर्डर में आपको गिवन है, सो इनकी जो लास्ट 6 रोटेशंस हैं, you can see those rotations would give you
the rotation about a single axis. So combination of three rotation is going to give you rotation about single axis. और उस single axis की में होगा ये कि वो single axis की rotation आप नहीं कर सकते होंगे in your robot due to a constraint. जिस तरह ये मैंने 12 के ऊपर लिखा है कि you have a constraint in rotation about x axis, so you achieve this rotation with the help of three rotations which are z, y and z. सर ये रोटेशन सिर्फ x के अबाउट तो नहीं होगी ना, मतलब वो पूरे स्पेस में रोटेशन होगी ना, मतलब देखिए पूरा फ्रेम रोटेट हो रहा है z, y and z, and then you will find out कि यार उसकी ओरिएंटेशन जो है वो एक x के सिंगल रोटेशन से भी अचीव की जा सकती थी, बट x के अबाउट सिंगल रोटेशन जो कि कंस्ट्रेंट था कि आप x के अराउंड के अबाउट रोटेट नहीं कर सकते थे अपने रोबोट को, तो इसलिए आपने उस जॉइंट को z, y और z के ऊपर रोटेट करके वो वाली ओरिएंटेशन अचीव की। ये मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू सर। ओके ठीक है, ये वाली बात आप समझ आ गई? यस सर। Okay, good. So now let's move forward, and now we are going to talk about Euler angles. अब fixed angle और Euler angle में फर्क क्या है? Let us read this statement. So this is we are now talking about an Euler angle rotation z, y, and x axis के Euler angle rotation. So let me just again. Okay. Oh, sorry. So we have again two axes, two frames, x frame, a frame, xa, ya, and za. So this is frame A. We have second frame, which is B frame, which was coincident, overlapping with frame A. But since it has rotated, so it has now taken this orientation, which is frame B. And how we have achieved this orientation? We have achieved this orientation by rotating an angle alpha about Z. ZA or ZB, we will just decide in a moment. So we have achieved this first rotation by rotating about Z. We have achieved this first rotation. अब जरा हम यहाँ वापस आते हैं and then we read this again. मैं इसको जरा कलर इसका वही वाला लेता हूँ, हम यहाँ पे मार्क करें. तो let's see. Start with the coincident frame. दोनों इकट्ठे थे. With known frame A, rotate B first about ZB by an angle alpha. अगर मैं previous slide पे जाऊं तो अच्छा इसको देख लें, मैं दोबारा वापस जाता हूं. We are talking about rotation of B about ZB by an angle alpha. Let's go back. यहाँ क्या? Rotation of B about XA. वहाँ rotation of B was about XB, about ZB. So यहाँ क्या था? Fixed angle में we were rotating B with respect to A. Euler में क्या है? We are rotating B with respect to its own axis, not about A axis, not about axis of plane A. So in Euler angles, we are rotating our frame B with respect to its own axis. ये चीज clear हुई? Difference between fixed and Euler angle. जी, कहीं कोई जरा मुझे इसका आंसर करे कि have you understood this? जी, okay, this is the difference between Euler angle rotation and fixed angle rotation is that in fixed angles
we rotate B, frame B with respect to frame A. But here in either angle, we rotate frame B with respect to its own axis. So this first rotation is about ZB by an angle alpha. Let us take the second example. In second example, we have rotation about YB. Again, we are rotating frame B by YB. तो ये देखें, ये जो YB की नई पोजीशन आई थी, which was YB prime, ये देखें यहाँ, ये जो YB की नई पोजीशन आई थी, YB prime, अब ये रोटेशन is about this axis by an angle beta. So this is my second rotation. And now let us talk about the third rotation, which is rotation about xb by an angle gamma. So now जो मेरा yb prime, अब yb double prime जब बन गया, जब ये yb double prime बन गया, so ये देखें कि अब it is being rotated with xb, ये देखें xb double prime, ये डबल ही बल्कि हाँ डबल प्राइम बना तो फिर ये मेरी अब इसके अराउंड सो एक्स बी क्या था, एक्स बी पहले एक्स ए के साथ कोइंसिडेंट था, सो मैं यहाँ जरा एक बिल्कुल डिफरेंट कलर उठाता हूँ, तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एक्स बी सबसे पहले इसके साथ कोइंसिडेंट था, यहाँ पे पहले रोटेशन के बाद एक्स बी यहां आ गया और ये एक्स बी प्राइम बन गया, फिर एक और सेकंड रोटेशन हुई तो ये जो एक्स बी प्राइम है ये यहां आ गया और ये एक्स बी डबल प्राइम बन गया, और फिर मैंने इसी जो एक्स बी डबल प्राइम था इसके अराउंड गैमा रोटेट किया इस एंगल से, और अब ये मेरी थर्ड रोटेशन जो है मुझे यहाँ पे, this is my third rotation. So the difference between a fixed angle rotation and Euler angle rotation is that in fixed angle we rotate frame B with respect to axis of frame A, and in Euler angle rotation we rotate B frame with respect to axis of its own. ये इसके अंदर था आइलर एंगल में और फिक्स्ड एंगल। यहां तक चीज क्लियर है? Shall I move forward? सर अपने आप का रेफरेंस करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता हो तो किस तरह अपने आप? नहीं, आसान है, आइलर एंगल आसान है, वो अभी हम जब ये दो तीन सॉल्व करेंगे ना तो आपको नजर आएगा कि आइलर एंगल आसान है। अच्छा, let me just to reinforce a little, let me just show you this. Just see this now. Here again, this is your A frame, this is your frame B. So first rotation was about Z. So Z के अराउंड आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दूर कर देता हूं इससे, ताकि ऑल्दो कि ये है इसके ऊपर ही पड़ा हुआ, लेकिन मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूं। तो आई एम रोटेटिंग अबाउट Z, ये देखें ZB, तो मैंने ये एक एंगल ZB यहां रोटेट कर दिया, ये पहली रोटेशन। द सेकेंड रोटेशन इज अबाउट YB। सो YB किधर है? दिस इज YB, ये जो ब्लू नजर आ रहा है। So now I am going to rotate about YB by an angle this, यहां पे मैं इसको रोक लेता हूं, और लास्ट मेरी रोटेशन इज अबाउट XB है, ये जो ब्लैक है, तो मैं इसको यहां से XB के राउंड यूं रोटेट कर देता हूं, तो ये मेरी ओरिएंटेशन बन जाती है। सही है, ये बात समझ आई है? तो मैं अगर X अब अपने फ्रेम B को विद रिस्पेक्ट टू A देखूंगा तो मुझे ये कुछ इस तरह से नजर आएगा।
3 रोटेशंस के बाद। सो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यू विल कम टू नो कि ज्यादातर लोग आइलर एंगल यूज करते हैं। क्यों? अभी हम जब इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि व्हाई मोर पीपल यूज आइलर एंगल रोटेशन। जी, ये वाली बात यहां तक समझ आई? Yes, sir. Okay, so let us go back. मैं जरा दोबारा, let me just change the. Okay, we come back here and we talk about this. अब इसमें फर्क क्या है? अब ये देखिए, वही ये आपके सामने वही वाली statement है जो last हमने we looked at this statement and we carried out this. So now this is Euler angle. So Euler angle जो है उसमें हम क्या करते हैं कि हम Euler angle लिखते हुए इनको प्राइम्स कर देते हैं. So wherever we look at this convention, so it means that we are talking about Euler angles जिसमें हमने प्राइम्स डाले हुए dashes डाले हुए. So this rotation matrix give me rotation of B with respect to A in Euler angles about Z, Y and X axes. अब देखिए, हमने सबसे पहले Z के अराउंड किया था तो आपने देखे हमने पहली रोटेशन यहाँ लिखी. Second was about Y, हमने second rotation यहाँ लिखी. And third was about X और ये हमने third rotation यहाँ लिखी. तो Euler angles में हम पीछे की तरफ या रिवर्स ऑर्डर में नहीं आते. Euler angle में हम जिस ऑर्डर से रोटेट कर रहे हैं उसी ऑर्डर से अपने फ्रेम्स को लिखते जा रहे हैं. सो यहाँ पे आप देखें तो ये दिस इज रोटेशन अबाउट Z by an angle alpha. This is rotation about Y by an angle beta. And this is rotation about X by an angle gamma. और मैंने वो तीन आपके सामने ये मैट्रिसेस 1, 2 and 3 ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं. और जब मैं इनको when I multiply these matrices, so I get final matrix of rotation like this. And if I want to now calculate the angles, तो मेरे पास वो R11, R12 जब मौजूद होंगे तो मैं again उसी तरह जैसे मैंने किया था for let's see, अगर मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख लूँ, let me write down that matrix. और मैं उसको कहूँगा which is rotation of B with respect to A. और यहाँ पे वही मेरे पास Z prime, Y prime, X prime हो by an angle alpha, beta and gamma. And this gives me R11, R12, R13, R21, R22, R23, R31, R32, R33. So अगर ये मैं बना लूँ, so let me just write those down. I do not know मैंने ये उसमें क्यों अपनी स्लाइड में ये चीज नहीं डाली. So let me just write it down from the book. Okay, how can I find out this? So Euler angle with this is going to give me beta as, oh sorry. So angle beta would be given by the equation 8 and 2 R31 square plus R32 square, this is under root, and R33. So this will be beta. Then alpha would be given by G. एक्सक्यूज है सर, ये जी, आप ZYZ का लिख रहे हैं सर? G ये मैं Z by X का लिख रहा हूँ. नो सर, आप एक बार दोबारा प्लीज देख लें सर, क्योंकि मैं रिपीट करूँ, ये देखिए, this is rotation about Z, this is rotation about Y, this is rotation about X. So this is, ये देखिए, Z, Y and X.
नो सर, मैं कह रहा हूँ जो आप ये बी का आपने एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये आप अगले वाले टॉपिक में चले गए फिर। ओ सॉरी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ये जी बाई जी का है, ठीक है, ओके, आई एम सॉरी, मैंने इसको ठीक है, लेट मी जस्ट मुझे फिर ये सारा अब मुझे ये इसमें भी बदलना पड़ेगा। चलो लेट मी जस्ट इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ। और मेरे पास जो मैट्रिक्स की बुक में मौजूद है मैं उसको यहाँ लिखता हूँ एंड देन हम इसको this is rotation of B with respect to A by Z, Y and Z by an angle alpha, beta and gamma. Okay, अब ठीक हो गया, सही है। So in fact ये जो मेरे पास अब ये मैट्रिक्स चेंज होगा, Z by Z के लिए जो मैट्रिक्स है वो अब मैं कहाँ लिखूं? अच्छा, let me just take out this space और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। So इसको यहाँ तक हम let's see इसको finish करते हैं and then I write down this which is rotation about of B with respect to A by around Z, Y and Z by an angle alpha, beta and gamma, and this is equal to cos alpha, cos beta, cos gamma. This is cos alpha, cos beta, cos gamma minus sin alpha, sin gamma minus sin alpha, sin gamma. Next carry, this is minus cos alpha, cos beta, sin gamma, cos alpha, cos beta, sin gamma minus sin alpha, cos gamma, and then cos alpha, sin beta. So this is the first line. The second line is sin alpha, cos beta, cos gamma, cos beta, cos gamma plus cos alpha, sin gamma. This is minus sin alpha, cos beta, sin gamma, cos beta, sin gamma plus cos alpha, cos gamma, and then sin alpha, sin beta, sin alpha and sin beta. And the third line would be minus sin beta cos gamma, sorry, gamma. This has to be gamma. Gamma. Then sin beta sin gamma, sin beta sin gamma, and then cos beta. अब इसको एक्चुअली मैंने इक्वेट कर दिया। सो ये मैंने अल्फा आपके सामने रखा, बीटा लिखा, अल्फा वुड बी 8 and 2 R23 by sin beta, and second term would be R13 by sin beta. And what about gamma? So gamma would look like this, 8 and 2 R32 by sin beta, and the second term will be minus R31 sin by sin beta. So this is how it is going to look like for a rotation of frame B with respect to A about Z, Y and Z axis. And then this is island angle. I repeat, this is island angle. अच्छा, island angle जो है वो हम क्यों यूज करते हैं?
मैं थोड़ा सा आपको दोबारा उसी तरफ ले जाता हूँ, दूसरे फ्रेम कैमरा की तरफ। जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं, जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? लेट्स सी कि ये फ्रेम जो बी फ्रेम है, ये बी फ्रेम मैंने एक थोड़ा सा दो जो मेरे पास फ्रेम्स हैं ये किसी एक लिंक पे लगे हुए हैं। एक लिंक एक तरफ लगा हुआ है जहां पे कोई रोटेशन यानी कि जॉइंट है, और दूसरा लिंक के दूसरे तरफ लगा हुआ है जहां पे एक जॉइंट है। लिंक क्या चीज होती है? लिंक जो है वो आप ये समझ लें कि लिंक इज दिस। ये एक आपको मार्कर नजर आ रहा है जो एक रोबोट का लिंक है, जिसके इस तरफ भी एक जॉइंट है और जिसके इस तरफ भी एक जॉइंट है। तो उसके दोनों एंड्स के ऊपर एक एक जॉइंट है, और ये दोनों जब जॉइंट है तो ये दोनों, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ये जॉइंट रोटेट कर सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस जॉइंट। तो इन दोनों जॉइंट्स के ऊपर मैं एक एक फ्रेम लगा देता हूं। तो मैंने एक फ्रेम यहां लगा दिया लाइक दिस, और दूसरा फ्रेम मैंने यहां लगा दिया लाइक दिस। तो मैंने दोनों फ्रेम्स के ऊपर, दोनों के ऊपर एक एक फ्रेम लगा दिया। और अगर अब मैं ये जो मैंने दोनों फ्रेम्स यहाँ लगाए थे और इनको मैं ऐसे कर लूं तो मुझे टॉप से ये यूं नजर आएंगे, जो कि अब आपको साइड से नजर आ रहे हैं, लेकिन टॉप से ये मुझे कुछ इस तरह नजर आएंगे। अगर मैं आपको ये यहाँ से दिखा सकूं, सो फ्रॉम द टॉप आपको ये थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट शायद करनी पड़ रही है कैमरे की। हाँ, तो टॉप से ये मुझे इस तरह नजर आ रहे हैं कि ये दो फ्रेम्स हैं, ये और सॉरी मैं से ये जरा ओरिएंटेशन इसकी सेट नहीं हो रही। ये ये मेरे पास ये दोनों फ्रेम, अब आपको देखें दोनों के जो जी हैं ये आपको ये बाहर की तरफ बोर्ड से आते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस तरह से मुझे ये नजर आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा इसी ओरिएंटेशन में ले जाता हूँ कि ये दोनों यहाँ पे। अच्छा, मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है? यस सर, आवाज Yes, क्लियर sir. है। ओके, मैं जरा चूंकि थोड़ा सा इस वक्त लैपटॉप से दूर हूँ, तो जस्ट आई वांटेड टू कंफर्म इफ यू पीपल कैन हियर मी। मैं अब इसको दोबारा यहाँ पे, लेट्स सी, ये अभी तक तो आपको ये दोनों फ्रेम्स एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़े से दूर पड़े हुए हैं, बट दोनों की ओरिएंटेशन सेम। आइलर एंगल क्या करता है कि लेट्स सी, अगर मैंने बी फ्रेम को विद रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम देखना है, और बी की रोटेशन ये है कि इट हैज रोटेटेड z अराउंड z बाय एन एंगल 90. So I have rotated frame B by an angle 90. ये मैंने जिस वक्त अपने लिंक को देखा तो एक लिंक के ऊपर मुझे ये ओरिएंटेशन नजर आई और अगले लिंक के ऊपर मुझे ये ओरिएंटेशन नजर आई। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये अगला वाला जॉइंट जो है वो इस पिछले वाले जॉइंट के रेफरेंस से कैसे रोटेट हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस पिछले वाले एंगल, अब इस जॉइंट को या पिछले वाले फ्रेम को इसके साथ अलाइन करूंगा। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे है, बस मैंने सिर्फ आके देखा तो मुझे ये नजर आया कि इसकी ये ओरिएंटेशन है, इसकी ये ओरिएंटेशन है। So now if I rotate my A frame by an angle and 90 about Z, तो आप ये देखें कि इसकी और इसकी ओरिएंटेशन सेम हो जाती है। ऐसे ही है? Yes, sir. ओके, अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं आइलर एंगल से, तो मैं क्या करूंगा
अब गौर से मेरी बात सुननी है, जब मैं आइलर एंगल से करूंगा तो मैं इस वाली रोटेशन को मैंने पहले देख लिया था, ये यहां पड़ा हुआ था, ये इस तरह पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या करना है कि मैंने अपने इस एंगल को, इस फ्रेम को रोटेट करना है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू अचीव दिस ओरिएंटेशन। सो मैंने इसको 90 डिग्री जी पे रोटेट किया तो मुझे इसकी ये ओरिएंटेशन। अब ये देखिए, ये मेरे लिए ये करना इस वक्त आसान है कि मैं बी को ए के उसमें ले जाऊं, क्योंकि मैं बी विद रेफरेंस टू ए पढ़ रहा हूं, बी विद रेफरेंस टू ए पढ़ रहा हूं, या जानना चाहता हूं कि बी विद रेफरेंस टू ए है, तो मैंने ए की रोटेशन इसके बराबर बनाई, और ए में जो रोटेशन हुई वही मैं कहूंगा कि यार बी की रोटेशन इस तरह हुई थी। सो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये है कि मैं इस बी को रोटेट किया अबाउट इट्स जी। अब ये मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो मेरे देखने से पहले की रोटेशन थी। तो क्या हुआ था कि रोटेशन होके एक सर्टन रोटेशन मेरे पास फ्रेम बी की आ गई हुई थी, उसको जानने के लिए मैंने अपने फ्रेम ए को अपने अराउंड रोटेट किया और इसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट ले आया, तो मुझे ये पता लग गया कि बी कैसे रोटेट किया था। ये बात समझ आती है? ये सही। ओके, ऐसा थोड़ी सी रिपीट करते हैं। मैं इसकी दो रोटेशन करता हूं, आपको और बेहतर समझ आएगी। ऐसे, ये रोटेशन, जब मैंने आके अपने देखा इसको तो मुझे ये पता लगा कि ए और बी के दरमियान ये मुझे नजर आ रहा है कि यार ये कुछ इस तरह से है कि ए इस ओरिएंटेशन में और बी इस ओरिएंटेशन में। व्हाट आई नीड टू डू इज, एक्चुअली मैं आइलर एंगल पढ़ रहा हूं और मैं कह ये रहा हूं कि यार मैंने बी को अबाउट बी कोई रोटेट किया तो मुझे ये मिल गई, विच आई डू नॉट नो एट द मोमेंट। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि यार मैं ए की को कैसे रोटेट करूं कि मैं इसके बराबर पहुंच जाऊं। तो मैं ए को अपने अराउंड रोटेट करने लगा हूं टू अचीव बी। सो अभी देखिए ओरिएंटेशन क्या है, मुझे ये नजर आ रहा है कि जी जो है वो इधर है, नीचे लेटा हुआ है। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि जी को यहां लाने के लिए, जी को यहां लाने के लिए नीचे मैं इसको एक्स के अराउंड 90 डिग्री रोटेट करता हूं। सो दिस इज माय फर्स्ट रोटेशन। So I rotated about x. I repeat, to achieve this orientation, I rotated x, which is this black, in a counterclockwise direction, 90 degrees, ताकि z दोनों मेरे align हो जाएं. So this is the first rotation. Then next step में क्या है कि मैंने y और x को भी अलाइन करना है। तो अगर मैं x देखें, इसका x ये है, ब्लैक ऊपर जा रहा है, तो मैं इस ब्लैक को भी चाहूंगा कि इधर ले आऊं। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है कि आई एम गोइंग टू रोटेट अबाउट z, a के z के अबाउट रोटेट करूं तो आप देखें कि मैं अपनी उस ओरिएंटेशन में पहुंच जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इससे पहले की कॉन्फ़िगरेशन थी, जो मैं जानना चाह रहा था कि यार ये बी ने क्या रोटेट किया है और यहां पहुंचा है, तो मुझे ये समझ आ गई कि एक रोटेशन जो है वो सबसे पहले हुई थी एक्स के अराउंड, फिर दूसरी रोटेशन हुई जी के अराउंड, तो मैं अपनी रोटेशन में वापस दोनों सेम हो गए। तो अब मैं आइलर एंगल करूंगा। सो रोटेशन अबाउट एक्स जो फर्स्ट थी, देन रोटेशन अबाउट जी, सो आई एम गोइंग टू गेट दिस ओरिएंटेशन। सो ये जो मैथमेटिक्स की और ओरिएंटेशन की आसानी के लिए हम फिक्स्ड एंगल से आइलर एंगल की तरफ चले। सो आइलर एंगल जो है ये आपको एक बेहतर कहना चाहिए वो क्या, it gives you a better comprehension of rotation
कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पे रोटेट। अब मुझे बताइए ये वाली बात समझ आई है? बिल्कुल साइलेंस है, आई एम अफ्रेड, कुछ समझ नहीं आई। समझ आ Is that गई है, so? या सब समझ आ गई है? आ गई है। सब समझ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा, प्लीज मेक दीज फ्रेम्स एट योर होम, और अभी मैं आपको जो कुछ सवाल हल कराऊंगा, सो उन सवालों को आपने फिर अपने इन फ्रेम्स के मुताबिक सॉल्व करना है बना के। सो आपको नजर आएगा कि यार इनके मुताबिक ये चीजें कितनी आसान हो गई। ठीक है, सो वी मूव फॉरवर्ड एंड वी टॉक अबाउट Island angle again, मैंने आपको बताया कि there are again 12 configurations which are given in appendix B of your book. Let me just write some of them for you here ताकि आपको ज़हन में रहे. So the first is X, Y and Z. The first is about X, Y and Z, and since these are Island angles, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर प्राइम डाल दिया है. Second is X, Z, Y. This is X, Z, and Y. Third is Y, sorry, Y, X, and Z. और तो मैंने प्राइम डाल दिया. On the last one would be, the 12th one would be Z, Y, and Z. ठीक है, ये सारे जो रोटेशंस मैं आपको यहाँ पे ये एंगल के सेट्स दिखा रहा हूँ, ये इन सब की कैलकुलेशन हुई, इन सब की कैलकुलेशन हुई भी, ये सारे सेट्स आपको अपेंडिक्स में मिल जाएंगे. सो आप इनमें से एक दो को जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस एक मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा. सो दिस विल हेल्प यू इन जस्ट ब्रशिंग अप योर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, सो ये मैंने आपको दिखा दिया जो बातें मैंने की थी. इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो आपको सामने नजर आ रहा है कि उसके ऊपर हमने प्राइम डाले हुए हैं और इधर जब हम इनको वो करते हैं. अब आप देखिए जो फिक्स्ड एंगल एक्स वाई जी से, गौर से देखिएगा, फिक्स्ड एंगल एक्स वाई जी से आप जो रोटेशन मैट्रिक्स अचीव कर रहे हैं ये वाला, again the same is being achieved by an island angle zy. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई इनकी आपस में सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी. जैसे अगर मैं आप अब इस टेबल में जाएंगे, आप इस टेबल को देखिएगा तो आपको जो एक्स वाई जी, जैसे मैंने बताया कि जो एक्स वाई जी है वो बराबर आ रहा है जी वाई एक्स आइलैंड. इसी तरह आप इधर देखेंगे कि जो इधर से कुछ और इनके साथ मैप हो रहे हैं, लाइक मेरा ख्याल है अगर मैं इधर से देखूं तो ये वाई जी एक्स जो है, वाई जी एक्स ऑफ फिक्स्ड एंगल, वाई जी एक्स ऑफ फिक्स्ड एंगल is equivalent to XZY आइलैंड एंगल. ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह से इक्विवेलेंसी में आपको नजर आएगी. सो 24 टोटल सेट्स, बट यू कैन वर्क विद 12 सेट्स. आइलैंड एंगल के साथ कर लेंगे आप एक्सप्रेशन. सो आइलैंड एंगल की आसान है कंप्लीशन. सो इसलिए फिक्स्ड एंगल से लोग आइलैंड एंगल की तरफ आ. ठीक है, so we move forward and we solve certain problems. अब जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये आपको और ज्यादा इसमें आसानी नजर आनी चाहिए. लेट्स हम एक वेक्टर ए पी की बात करते हैं which is rotated about ya, which is rotated about ya by 30 degrees
ये है, and subsequently rotated about XA by 45 degrees. ठीक है, तो अगर मैं इसको फिक्स एंगल के साथ जाना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा कि जो रोटेशन है दिस कैन बी गिवन बाय, पहली रोटेशन क्या थी, y के अराउंड बाय एन एंगल 30, तो मैंने इसको इधर लिख लिया, और अगर और दूसरा जो है वो मैंने x के अराउंड बाय एन एंगल 45, सो मैं इसको x लिख, तो रोटेशन अबाउट x, देन रोटेशन अबाउट y, x, सो ये पहली रोटेशन थी जो मैं फिक्स्ड एंगल के मुताबिक चल रहा हूँ। तो अब लेट मी जस्ट पुट दीज वैल्यूज, सो आपको याद होगा कि 45 रोटेशन अबाउट x जो है उसमें क्या होता था, 1 0 0 0 0, और यहां मेरे पास क्या होता था, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, सो ये मेरे पास रोटेशन आ गई। मैं इसको अल्फा कह रहा हूं, और लेट्स सी इसको मैं बीटा कह देता हूं। सो रोटेशन अबाउट y क्या था, रोटेशन अबाउट y में आपको याद होगा कि हम लिखते थे सेकंड रो में 0 1 0 0 0, और यहां आएगा cos बीटा, यहां आएगा sin बीटा, यहां माइनस sin बीटा, और यहां cos बीटा। तो अब अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज डाल दूं, सो दिस कम्स आउट टू बी 1 0 0 0.7 minus 0.7 0.7 multiplied by 0.860 0.5 010 and minus 0.5 0.86, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो फाइनली आई गेट दिस 0.86 0 0.5 0.353 0.707 minus 0.612 minus, sorry, this is with a minus sign, sorry, let me just make correction. Minus 0.353 0.707 0.612, so this is अब ये देखें ये फिक्स्ड एंगल रोटेशन। So let us go on to the next. Next क्या है, a frame B is located coincident with frame A and we rotate frame B। अब देखिए आप frame B को ZB, तो इसका मतलब है कि ये आप आइलर एंगल में जाने लगे। So we rotate B about ZB। So rotation को मैं अभी यहाँ लिख लेता हूँ। So rotation matrix would be a rotation about Z by an angle 30। अब ये चूंकि आइलर है मुझे नजर आ रहा है, and then we rotate resulting frame about XB, so दूसरा would be RX with 45 degrees, और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करता हूं तो I find out this। तो ये मैं फाइनल आपको लिख के देने लगा हूं, ये थोड़ा सा आप अपना खुद कीजिएगा, इनकी निकाल के, जैसे मैंने पहले भी किया था, इसको निकाल के आपने जो है वो करना है ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। -353 sorry, this is with a negative sign, this is with a negative sign, this is with positive sign, this is 0.5 0.612 minus 0.612 0 0.707 0.707, so this is the resultant matrix जो कि B with respect to A है, and this is आइलर।
क्योंकि यहाँ हमें ये बता दिया गया कि v rotate b with respect to zb and then we rotate the resulting frame which is actually frame b with respect to xb. तो xb अपने ही अराउंड रोटेट कर रहा है तो हम इसलिए इसको इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब when you go open up your book and you go to the exercise, तो ये इस तरह के सिंपल छोटे छोटे सवाल आपको शुरू में मिलेंगे। So try solving these. सिंपल आपको ये मिलेंगे, इनको देखें, इनको सॉल्व करें, आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। फिर हम थोड़ा सा आपको एक मैं आइडिया और वेलोसिटी वेक्टर के बारे में देना चाह रहा था कि if you are given a velocity vector, if you are given a velocity vector, so ये एक्चुअली वेलोसिटीज हैं उस वेक्टर की जो आपको यहाँ पे दी। सो जब मैं इनको वेलोसिटीज को वेक्टर को यूज करता हूं और मैं जानना क्या चाहता हूं कि b के अंदर एक वेलोसिटी वेक्टर मुझे विद रेफरेंस टू फ्रेम b नोन है, तो मैं ये जानना अगर चाहूं कि यार यही वेलोसिटी जो मुझे b वेक्टर में नजर आ रही थी, ये विद रिस्पेक्ट टू a मुझे क्या नजर आएगी। आई रिपीट कि मैं एक वेलोसिटी वेक्टर जो मुझे b फ्रेम में नोन था, अगर उसको मैं a फ्रेम में देखना चाहूं, जबकि a और b के दरमियान एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिलेशनशिप है इट इज गिवन बाय दिस वेक्टर, तो मैं ये कैसे कंप्यूट कर सकता हूं वेलोसिटी ऑफ point of that velocity vector with respect to a. So this is written as, अच्छा अब चूंकि ये वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ट्रांसलेशनल पार्ट जो है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। कौन सा है ट्रांसलेशनल पार्ट? ये दिस इज द ट्रांसलेशनल पार्ट। चूंकि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम इसको नहीं, हम वी आर ओनली गोइंग टू कंसीडर द रोटेशनल पार्ट ऑफ दिस, ये जो मैं अब बना रहा हूं। सो आई एम ओनली गोइंग टू, जी बताइए सर। ब्रेक नहीं होनी? ब्रेक अच्छा, चलिए मैं ही आपके लिए सॉल्व करता हूं, आप सिर्फ इसको देखते रहें, परेशान ना हो, सिर्फ देखते रहे इसको। सो मैं जस्ट गोइंग टू राइट डाउन दिस इक्वेशन हियर, तो जस्ट आप इसको देखते रहें। सो वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू a would be given by the rotation vector b with respect to a into the velocity vector with respect to b. सो ये जैसे हमने लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने बताया था कि ये इस तरह से हमने देख रहे हैं कि दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर, सो va जो है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये एक तरीका था, आपको याद है हमने लास्ट टाइम कहा था कि ये हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो मैं अब ये 0.866 minus 0.5 0 0.5 0.866 0 0 0 1, so ये मैंने रोटेशनल पार्ट उठा लिया ग्रीन वाला and I multiplied it with velocity 10, 20 and 30, and this is going to give me a vector which is minus 1.34, 22.32 and 30.0. So this is my velocity vector, वही वाला जो मुझे b में पता था वो अब मुझे a में। तो यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मकसद आपको बताना ये था कि whenever we are dealing with the velocities, हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का जो ट्रांसलेशनल पार्ट है उसको सेट साइड कर देते हैं and we only take into consideration the rotation part. Okay, so ये वाला हो गया। ये एक आपकी होम असाइनमेंट है, ये आपने खुद करनी है, ठीक है। और इसका मकसद क्या है, ये वाली आपको असाइनमेंट खुद करनी है, ये आपने सबमिट नहीं करनी। इसमें सिर्फ ये है कि आपने देखा होगा कि हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में दो तरह की हमारे पास
अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं, एक एडिशन का और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का। ये एग्जांपल जब आप देखेंगे तो ये आपको ये बताएगा कि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किसकी ज्यादा है। सो इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस तो इसका मतलब है कि आपकी जो वो है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है या वो बढ़ जाएगी या कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो आपको ज्यादा आपके कंप्यूटर को ज्यादा इटरेशंस या ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने पर। ठीक है, सो ये एग्जांपल आपको ये यहाँ से जब आप इसको ये सॉल्व एग्जांपल है, ये आपको ये चीज दिखाएगी। फिर आपने इस चीज को देखते हुए प्रॉब्लम 2.16 को सॉल्व करना। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया, दिस विल गिव यू एन आइडिया कि while multiplying the matrices and vectors, ये आपको दो चीज दिखाएगा कि मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को वेक्टर के साथ और दो मैट्रिक्स हैं तो वेक्टर के साथ, तो कैसे करना चाहिए मैं आपको जस्ट सिर्फ ये दिखा देता हूँ। Let's see, we have a matrix A, then we have और ये हमारा 4/4 है, then we have a matrix B which is again 4/4, and then we have a vector P which is 4/1. So अब आपने दो तरीके हो सकते हैं ना कि आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर इनके प्रोडक्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूं और इसके प्रोडक्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दूं। अब यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि इस ग्रीन वाले पाथ में मेरे पास कितने नंबर ऑफ एडिशन और कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आनी है, और अगर मैं ये रेड वाला पाथ लेता हूं तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ एडिशन और कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आनी है। इससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो ये आपने इन दोनों चीजों को सॉल्व करना है। इसको दोनों एक एग्जांपल को देखेंगे और उससे रिलेट करके प्रॉब्लम नंबर 2.16 को सॉल्व करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट कि यह कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, ये कर लेंगे। यस सर, हो जाएगा। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब हम आइलैंड एंगल की तरफ आ गए हैं दोबारा। सो लेट मी जस्ट सर आज का टाइम बस होने नहीं गया, आज का टाइम ज्यादा हो गया है। फिर सर बस होने लगे बस मैं आपको सिर्फ ये एक एग्जांपल जो है ना ये कराऊंगा, दूसरी आपने खुद करनी होगी, वो भी आपको उससे प्रैक्टिस होगी। आपने ना बना लेने हैं, ये अपने फ्रेम्स बना लेने, ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, लेट्स सी, मैंने ये जो आपके सामने इसको एग्जांपल रखी है, इसमें आपको देखें नजर क्या आ रहा है। वी हैव अ फ्रेम ए हियर, ये फ्रेम ए है, ये जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, देन ये फ्रेम बी है, ये फ्रेम बी है जो मैंने आपको ग्रीन से दिखा रहा हूँ, एंड देन मैजेंटा से मैं आपको फ्रेम सी दिखा रहा हूँ। सो हमारा पहला सवाल ये है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम, अच्छा पहला सवाल तो 2.27 है। 2.27 में हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो अब देखिए, अब सिर्फ ये देखिए, लेट्स सी, मैं इसको ना वो करता हूँ, जिस ओरिएंटेशन में ये पड़े हुए हैं ना, मैं इसी ओरिएंटेशन में अपने दोनों फ्रेम्स को रखता हूँ। सो लेट्स सी, जो मेरा फ्रेम ए है जी वो कैसे पड़ा हुआ है, जी इसका ऊपर है, एक्स इसका ऐसे है और बी अंदर की तरफ है, तो ये ऐसे आपको नजर आता है। अगर मैं ये फ्रेम ए देखूं तो इसकी मैंने ओरिएंटेशन आपके लिए इस तरह बना दी है
कि z इसका ऊपर है, x आपको राइट पे जाता हुआ नजर आ रहा है और y आपको इनसाइड दी पेपर जाता हुआ नजर आ रहा है। और लेट्स सी अगर मैं b को देखूं तो b कैसे नजर आ रहा है, b में भी मुझे z ऊपर नजर आ रहा है, ऐसे मैंने z को यहां रखा और इसमें मुझे YB मुझे बाहर आता हुआ नजर आ रहा है ऐसे, और XA जो है वो लेफ्ट पे जाता हुआ नजर आ रहा है। सो ये देखें, ये मैंने इस तरह से ये आपको दोनों साइड बाय साइड रख के दिखा दी। अब आइलर एंगल में क्या करना है मैंने कि आई हैव टू फाइंड आउट द रोटेशन, और वो रोटेशन मुझे क्या बताएगी, वो रोटेशन मुझे ये बताएगी कि मैंने अपने इस फ्रेम A को अपने अबाउट रोटेट करके, मैंने इस फ्रेम A को अपने अबाउट रोटेट करके क्या करना है, इसके बराबर लेके जाना। अब मुझे बताइए कि क्या आपके ज़हन में कोई ऐसी रोटेशन आती है कि मैं इस फ्रेम को इसके बराबर बना दूं जिसमें z ऊपर हो, z यहीं पे ही रहे और x और y की रोटेशन ये हो जाए? बिल्कुल हो सर सकती जी है। के अबाउट रोटेशन होगी। मैं बिल्कुल ठीक है, तो मैं z के अबाउट रोटेट करूंगा इसको, और मैं इसको अगर z के अबाउट रोटेट करूं बाय 180 डिग्रीज, तो आप देखें कि मुझे सेम ओरिएंटेशन मिल गई। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल हो गया। मैं इसकी रोटेशन क्या लिखूं? अच्छा ये क्या चीज होती है, ये इनफैक्ट क्या होता है, दिस इज रोटेशन B to A, और इसमें देखिए थोड़ी ये ट्रांसलेशन भी है, तो हम इसको आपको याद है लिखते होते थे कि P का ओरिजिन, और यहाँ हम 3 जीरोस डालते थे और यहाँ 1 डालते थे, तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। तो लेट अस सी, मैं सबसे पहले रोटेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना चाहता हूँ, तो मैं आई एम गोइंग टू रोटेट अबाउट Z by an angle 180. Am I right? यस सर। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। सो एक इसको मैं अगर लिखूं तो मेरे पास ये सिंस इट इज रोटेशन अबाउट z, तो ये मेरे पास आ जाएगा cos 180 minus sin 180, then sin 180, इसको मैं जरा ऐसे ब्रैकेट में डाल दूं, and then cos 180 0 0 1 0 0, ये रोटेशन आ गई। और अगर मैं इसको देखूं कि इसकी ट्रांसलेशन कितनी है, सो इट हैज ट्रांसलेटेड 3 इन x डायरेक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं लिखना चाहूं B to A, तो ये मैं रोटेशन मैट्रिक्स इसी तरह cos of 180, इसकी मैं वैल्यूज डाल सकता हूं, माइनस sin of 180। cos 180 क्या होता है, चलो लेट्स पुट इन -1। cos 180 -1 होता है, जो आप कहेंगे मैं लिखता जाऊंगा, फिर गलत हुआ आपकी जिम्मेदारी है। cos 180 -1 माइनस Yes, sin sir. 180 क्या है, 0। 0 0, sin 180 0 0, cos 180 -1 -1. -1 0 0 0 1, और ट्रांसलेशन क्या थी 3 0 0, और अब इसको मैंने चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है तो 0 0 0 1, so this would be my transformation from B to A। ठीक हो गया? यस एक सर। और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म, वही डायग्राम है। अच्छा सर, जी जी जी। आपने जब भी वो ट्रांसफॉर्मेशन निकाली है उसमें अगर B को A में करना है तो -3 नहीं होगा? अच्छा ना देखिए हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि B, मैं फिर दोबारा आपको, ओके, हम ये देखना चाह रहे थे
कि बी पहले इसके साथ कोइंसिडेंट था, अब यहां पहुंच गया, तो मैं इसको वापस नहीं लेके आ रहा, मैं ये कर रहा हूं कि मैं ए को, क्योंकि मैं आइलर एंगल यूज कर रहा हूं, तो मैं ए को इस ओरिएंटेशन में लेके जाता हूं और फिर इसके साथ देखिए यहां से इसकी ओरिएंटेशन मैंने यूं बना दी और फिर मैं इसको उठा के यहां 3 यहां ले गया। हाँ, ये तो समझ आ गई। अब आगे समझ, Yes, sir. जबरदस्त, ओके जबरदस्त। सो दिस इज हाउ इट वुड गो। इस वाले में देखेंगे, इस वाले में मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं 2.28 में मैं जानना चाहता हूं P C A। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं जरा इसमें ये हमें A और C, दिस इज C। अब मैं जरा इसकी ओरिएंटेशन बनाता हूं। A की ओरिएंटेशन तो वही है जो मैंने बनाई थी पहले, कि X जो है वो इस तरफ है, ये है। C की ओरिएंटेशन क्या दिखती है? अच्छा, ये तो आपको समझ आ जाएगी ना कि ये अगर एंगल 30 का है तो ये एंगल भी 30 का होगा, ये वाला, ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, ये बात समझने में। नो सर। हाँ ठीक है। सो इसकी ओरिएंटेशन अगर मैं देखूं, सी की ओरिएंटेशन देखूं, तो सी में क्या है, एक्स डाउनवर्ड है ऐसे, अच्छा, और ये क्या चीज है, ये जी है, रेड वाला जी है, और ये एक एंगल 30 पे ऐसे 30 के एंगल, ये ओरिएंटेशन बन रही है, ठीक है, ये ऐसे है और ये रोटेट होकर तकरीबन ऐसे हुआ है, अगर मैं जी को देखूं। ये बात समझ आ गई? जी यस सर। ओके। अब मैंने सर ये इसको, 30 वाली बात नहीं समझ रही सर, किस तरह आपने कहा जी कि दोबारा 30 वाली? बताइए, दोबारा सर ये बताइए। 30 एंगल 30 वाली सर बात नहीं समझ आई, ये हमें सर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है ये, थोड़ा सा जाके देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये ओके सर, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ओके सर। सो इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लेंगे। तो अब मुझे बताइए कि मेरी रोटेशन, इसको मैं कैसे रोटेट करूं कि मेरे पास ये ओरिएंटेशन आ जाए, ए को मैं कैसे रोटेट करूं कि मेरे पास ये ओरिएंटेशन आ जाए। जी सर 90 अबाउट y और 90 अबाउट वाई, ओके, वाई किधर है जी, वाई ये ब्लू है, प्लस 90 या माइनस 90, प्लस 90 सर। प्लस 90, तो इसका मतलब है कि वाई को मैंने इसको वाई के अबाउट रोटेट करूंगा तो ये यूं हो जाएगा, यस सर। और अब x के अबाउट देन -30, ये नीचे मेरा कौन सा है, एक्स है, और इसके एक्स अबाउट के अबाउट में क्या रोटेट करूं, -30। एक्स के अबाउट माइनस, ठीक है, -30 इसलिए कि एक्स नीचे जा रहा है, तो मैं अगर इसको ऐसे -30 रोटेट करूं तो ये मेरी ओरिएंटेशन सीधी हो जाती है, दोनों सेम ओरिएंटेशन में आ गए, और फिर उसके बाद मैं इसको यहां से ट्रांसलेट करूं और इसके साथ यहां ले जाऊं, तो ये दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास एक रोटेशन अबाउट y by 90 and rotation about x by -30 and a translation. So this is going to give me the C with respect to A. ये बात किसको समझ नहीं आई? जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये बात किसको समझ नहीं आई, इसलिए कि ये बात अगर समझ नहीं आई तो फिर हमें इसके ऊपर और मेहनत करनी की जरूरत है। सबको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स सी, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां से दो रोटेशन हैं, रोटेशन अबाउट y by 90 multiplied by rotation about x by -30, sorry, this is -30 and then there is a translation क्या है, 3x में और 2 x में और z में, so x में 3, y में 0, नहीं y में भी है,
y में नहीं, y में नहीं है, 3 में और इसमें भी. So this is actually C org, और ये मेरा रोटेशन है, रोटेशन जो है वो C2A. सो अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं या मैं यहाँ से इसके वो लिखूं, इक्वेशंस अगर लिखूं, तो रोटेशन अबाउट y में क्या होता था जी, वी हैड cos of 90, sin of 90, नहीं सॉरी y में है ना, तो ये 0 होगा. So this is 0, this is sin 90, then 0, 1, 0, minus sin 90, 0, cos 90. So ये एक मैट्रिक्स हो गया. इसके साथ जो दूसरा मैट्रिक्स है वो x का है. So x में यहाँ 1, 0, 0, 0, 0, और ये -30 है. So cos -30 minus sin -30 sin 30 cos 30. So ये मेरे निकल आएंगे आपके क्या नाम है, दो रोटेशन मैट्रिक्स. इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनके साथ हम जोड़ देंगे हमारा ये वाला ट्रांसलेशन, ये वाला ट्रांसलेशन इनके साथ. सो इनकी वैल्यूज डाल के अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए मैं इनकी वैल्यूज डाल के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा. सो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको डाल के मल्टीप्लाई कर लें. अब आपने जो आपकी बुक में एग्जांपल्स, ये जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इफ यू आर एबल टू डू 2.27 से लेके 2.35, इसको मैं 2.27 से लेके 2.35, अगर ये प्रॉब्लम्स if you are able to solve them successfully, so आपको दोबारा ये जो ओरिएंटेशन, ट्रांसलेशन, इनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं अभी आपको इनका सोल्यूशन नहीं दूंगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप इनको खुद ट्राई करें. 2.27 और 2.8 तो मैंने आपको करवा दिया, तो आपने इनफैक्ट 29, 30, 31, 32, 33, 34, बल्कि 34 तक करना है, 35 की भी जरूरत नहीं. 2.34 तक इसको आप करें. So if you are able to do these problems, so I am sure that you will be able to आपको एक बात समझ आ जाएगी कि यार ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसे थी, फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा आगे इसको पढ़ना, इनवर्स और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स. तो ये आपने आज ही करनी है क्योंकि कल हम फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे. सो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चन, सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. 27 और 28 मैंने कर दी हैं, तो टोटल 29 की 6 हैं, टोटल 6 प्रॉब्लम्स हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू दैट दोस एट योर होम बाय टुडे, ताकि कल जब हम इनवर्स की फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स की बात करें तो हमें ये मैट्रिक्स की रोटेशन और इनकी मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, फ्रेम्स की रोटेशन और फ्रेम्स की ओरिएंटेशन, फ्रेम्स की ट्रांसलेशन हमें क्लियर हो जाए. ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? जी, एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, चलिए. इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस, सो प्लीज गो, ये 6 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करके क्लास में आने हैं कल, सो दैट हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा फिर दोबारा बातचीत करने की जरूरत ना पड़े. तो ओके, लेट मी जस्ट